معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جاپان کے حکمراں جماعت نے یوشیدے سوگا کو نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ چین نے امریکی وزارت دفاع کی وارننگ مسترد کر دی۔ صدر کووند اور وزیر اعظم مودی سے لے کر صنعت کاروں، صحافیوں تک ان سبھی کی نگرانی کر رہا ہے چین۔ دہلی فسادات میں اسپیشل سیل نے عمر خالد کو کیا گرفتار۔ عمر خالد کی گرفتاری پر پرشانت بھوشن نے اٹھائے سوال، دلی پولیس کے لیے کہی یہ بات۔ وزیر اعظم مودی کے غرور نے ملک کو کورونا سے دوچار کر دیا، راہل گاندھی۔ پورا ملک فوج کے جوانوں کے پیچھے کھڑا ہے، مودی۔ یوگی کا غنڈہ راج، این ایس اے کے تحت گرفتاریوں میں 50% ڈوکشی کے معاملے۔ لوک سبھا نے پرنب مکھرجی اور دیگر مرحوم لیڈروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مہاراشٹر کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ادھو ٹھاکرے۔ مہاراشٹر حکومت مراٹھا ریزرویشن پر ہرگز نہیں ہٹے گی پیچھے، وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کا اعلان۔ کنگنا رناوت کا مکان غیر قانونی، بی ایم سی کی ایک اور نوٹس۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے 276 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 36,922 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی خواتین کی خوشحالی و ترقی کے خواہش مند۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا اور رکن اسمبلی میتکور راگھو رامی ریڈی۔ ضلع کڑپا میں آج 13 افراد کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے سمگل کی جا رہی سرخ سندل کی لکڑی ضبط، 13 افراد گرفتار۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ جاپان کے حکمراں جماعت نے یوشیدے سوگا کو نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق حکمراں جماعت نے مستعفی ہونے والے وزیر اعظم شنزو آبے کی جگہ یوشیدے سوگا کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور نئے وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے ووٹنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم شنزو آبے نے خرابی صحت کی بنا پر گزشتہ ماہ عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جس کے بعد نامزد کیے جانے والے یوشیدے سوگا کے وزیر اعظم بننے کے واضح امکانات ہیں۔ چین نے امریکی وزارت دفاع کی وارننگ مسترد کر دی۔ چینی وزارت برائے قومی دفاع نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے اپنی سالانہ کانگریشنل رپورٹ میں چینی فوجی پالیسیوں کو مسخ کر کے پیش کیا ہے۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے امریکی وزارت دفاع کی اس رپورٹ کو اشتعال انگیز بھی قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے دونوں ملکوں کے فوجوں کے باہمی تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ 1 ستمبر کو جاری کردہ اس امریکی رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ چینی فوج کی ماڈرنائزیشن کو نظر انداز کیا گیا تو امریکی قومی مفادات کو شدید نقصانات پہنچنے کا خدشہ ہوگا۔ صدر کووند اور وزیر اعظم مودی سے لے کر صنعت کاروں، صحافیوں تک ان سبھی کی نگرانی کر رہا ہے چین۔ چین کی حکومت اور چین کی کمیونسٹ سے منسلک ایک پارٹی بڑی ڈیٹا کمپنی کم سے کم 10,000 ہندوستانیوں کے غائل کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس ٹائم ڈیٹا میں صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی، اپوزیشن کی بڑی لیڈر سونیا گاندھی اور ان کا کنبہ، مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، عدلیہ سے لے کر کاروباری دنیا کی بڑی ہستیاں اور یہاں تک کہ میڈیا سے وابستہ لوگ بھی شامل ہیں۔ فہرست میں کئی مجرمین اور ملزمین کا نام بھی شامل ہے۔ انگریزی ویب سائٹ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ میں یہ جانکاری دی گئی ہے۔ دہلی فسادات میں اسپیشل سیل نے عمر خالد کو کیا گرفتار۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم عمر خالد کو کل دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے دہلی فسادات میں سازش رچنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ میڈیا کے مطابق عمر خالد کا نام دہلی فسادات سے متعلق ہر چارج شیٹ میں ہے۔ عمر خالد کی گرفتاری یو اے پی اے کے تحت کی گئی ہے۔ دہلی پولیس آج عمر خالد کو عدالت میں پیش کرے گی۔ عمر خالد کی گرفتاری پر پرشانت بھوشن نے اٹھائے سوال، دلی پولیس کے لیے کہی یہ بات۔ عمر خالد کی گرفتاری کو لے کر سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے سوال کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کی طرف سے جانچ کی آڑ میں
पुरअमन कारकुनान को फंसाने की ये साजिश है। वजीर आजम मोदी के गुरूर ने मुल्क को कोरोना से दोचार कर दिया, राहुल गांधी। हिंदुस्तान में कांग्रेस के रहनुमा ने कहा कि एक शख्स के गुरूर की वजह से मुल्क भर में फैल गया कोरोना वायरस। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर राहुल गांधी ने आज बरोज पीर कोरोना वायरस के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कहा कि उनके गुरूर की वजह से ये वबा मुल्क भर में फैल गई है। पूरा मुल्क फौज के जवानों के पीछे खड़ा है, मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कहा कि पूरा मुल्क सरहद पर खड़े फौजी जवानों के पीछे खड़ा है। आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंचे मोदी ने चीन के साथ सरहद पर कशीदगी के दौरान फौज के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, हमारी फौज के बहादुर फौजी सरहद पर डटे हुए हैं, पूरी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुश्वार गुजार पहाड़ियों में डटे हुए हैं। योगी का गुंडाराज, NSA के तहत गिरफ्तारियों में 50% गोकशी के मामले। योगी सरकार जब से इख्तिदार में आई है, उत्तर प्रदेश में फिरकावारियत और इंतकाम की सियासत को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। जिस एजेंडे पर मरकज की मोदी सरकार पिछले 6 बरस से काम कर रही है, योगी सरकार भी इसी एजेंडे पर मंसूबा बंद तरीके से चल रही है। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि इस मामले में वो मोदी सरकार से भी 2 कदम आगे है। अक्सरियत को खुश करने की पॉलिसी के तहत अब अक़लियती तबके को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। लोकसभा ने प्रणब मुखर्जी और दीगर मरहूम लीडरों को खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा ने मानसून सेशन के पहले रोज आज साबिक सदर प्रणब मुखर्जी, ऐवान के रुकन HO सुनीत कुमार, क्लासिकी गुलकार पंडित जसराज और ऐवान के दीगर साबिक अराकीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई शुरू करते ही ऐवान को साबिक अराकीन के इंतकाल की इत्तला दी और उनके ताउन का जिक्र किया। ऐवान ने मुल्क की सलामती के लिए शहीद होने वाले फौजियों और कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोरोना वायरस को भी खराज अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश हो रही है, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार के रोज कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए एक साजिश शुरू की गई है। जो भी सियासी तूफान आते हैं मैं उनका सामना करूंगा, मैं कोरोना वायरस से भी लड़ूंगा, ठाकरे ने टेलीविजन पर अवामी खिताब में कहा। महाराष्ट्र हुकूमत मराठा रिजर्वेशन पर हरगिज नहीं हटेगी पीछे, वजीर आला उद्धव ठाकरे का ऐलान। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह किया कि मराठों को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार उनके साथ है, इसलिए किसी भी किस्म की बदगुमानियां पैदा न की जाए और सरकार इस मामले में कामयाब पैरवी भी करेगी। कंगना रनावत का मकान गैर कानूनी, BMC की एक और नोटिस। फिल्म अदाकारा कंगना रनावत का मुंबई के इलाके खार में वाक़ मकान को गैर कानूनी करार दिया गया है। उनके ऑफिस को मुनहदिम करने के बाद बुरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कंगना रनावत को गैर कानूनी मकान की तामीर के सिलसिले में नोटिस जारी की है। BMC के मुताबिक उनके पाली हिल में वाक़ मकान के अंदर तामीर करदा ऑफिस में भी कई बेकायदगियां पाई जाती हैं। कंगना रनावत खार वेस्ट में वाक़ इमारत की 5वीं मंजिल में रहती हैं। ये इमारत भी गैर कानूनी बताई गई है। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के 276 नए मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद बढ़कर 36,922 हो गई। जिला कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 276 नए मरीज मुस्बत पाए गए हैं, जिससे ये तादाद बढ़कर 36,922 हो चुकी है। आज 1021 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। ताहाल 30,807 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक 381 मरीजों की मौत वाक़ हो चुकी है। जिला में महकमे पुलिस की जानिब से बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुतार अली खान की रिपोर्ट। जिला SP कड़पा अनवराजन के अहकामात के तहत जिला भर में बगैर मास्क के बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बगैर मास्क के 42 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 10,835 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। जिला SP अनवराजन ने जिला के आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस के इंसदाद में महकमे पुलिस को ताउन दें। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी खवातीन की खुशहाली व तरक्की के ख्वाहिशमंद। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा।
और रुकन असम्बली मैतकूर राघुरामी रेड्डी। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला कड़पा के मैतकूर असम्बली हल्के में ब्रह्मगाड़ी मठम के योगी व मनारेड्डी सत्रम में आज वैएसआर आसरा हफ्तावार के तहत एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिससे खिताब करते हुए नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह और रुकन असम्बली मैतकूर रघुरामी रेड्डी ने कहा कि वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने हमेशा खवातीन की तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो दी है। इसके वैएसआर आसरा प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने का मौका फराहम किया है। इसके अलावा कई दीगर स्कीमात के जरिए से भी खवातीन की तरक्की और बहबूद को यकीनी बनाया जा रहा है। अमजद बादशाह ने कहा कि वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद से जगन मोहन रेड्डी ने हर दिन अवामी बहबूद पर काम करते हुए रियासत के तमाम तबकात व मज़ाहिब के मानने वालों की हमाजहती तरक्की के लिए इक़दाम किए हैं। तालीम पर तवज्जो दी जा रही है। स्कूल जाने वाले हर बच्चे की मां के खाते में हर साल 15,000 रुपये जमा किए जा रहे हैं। 1वीं जमात से लेकर डिग्री तक, इंजीनियरिंग और दीगर आला तालीम के हुसूल तक हुकूमत ही फीस अदा कर रही है। बागरा खवातीन के लोन माफ कर दिए गए हैं। रुकन असम्बली मैतकूर रघुरामी रेड्डी ने भी खिताब किया। इस मौके पर ब्रह्मम गाड़ी मठम मंडल में 475 डागरा ग्रुप्स में 3,02,76,000 के चेक्स दिए गए। जिला कड़पा में आज 13 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से स्मगल की जा रही सुर्ख संदल की लकड़ी जब्त, 13 अफराद गिरफ्तार। जिला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन ने यहाँ अपने पैनर पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिला कड़पा में पेनागुलुरु पुलिस स्टेशन में एक चोरी की शिकायत मौसूल हुई, जिसके तहत चिन्ना बाबू ने चक्रमपेट में वाक़े सरकारी शराब की दुकान से 3,53,060 रुपये जबरदस्ती छीन ले जाने का इल्जाम आयद किया गया। जिला एसपी कड़पा के अहकामात के तहत DSP राजमपेट नारायणा रेड्डी ने अपने अमला इंस्पेक्टर रूरल इंचार्ज राजमपेट बनुमत नायक और सब इंस्पेक्टर पेन्नागुलुरु चिन्ना केसवा और पुल्लमपेट के एसआई विनो के साथ मिलकर बाविसोख जराये से इतला मिलने पर 3 इलाकों पुल्लमपेट, पेनागुलुर और दामन चेरू के इलाकों में धावे करके 13 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 28 अदद सुर्ख संदल की लकड़ी, 2 कीमती कारें, 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। आज उन्हें अखबारी नुमाइंदों के सामने पेश करके तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर अनबुराजन ने कहा कि 13 में से 7 अफराद तालिब इल्म हैं। उन्होंने वालिदैन से अपने बच्चों की नकल व हरकत पर निगाह रखने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि इस केस में मजीद तहकीकात की जा रही हैं। उन्होंने सुर्ख संदल की लकड़ी के स्मगलरों को गिरफ्तार करने पर DSP राजमपेट नारायणा स्वामी रेड्डी और अमला की सताइश की। कंप्लेंट स्टेशन వచ్చింది చిన్నబాబు 32 years old ఆయన చక్రంపేట గవర్నమెంట్ వైన్ షాప్లో క్యాషియర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఈయన డ్యూటీ ముగించుకొని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ చక్రంపేట జంక్షన్లోనే 2 వ్యక్తులు ఈయన మీద దాడి చేసి కత్తులతో చెస్ట్ దగ్గర పొడి చేసి అక్కడ నుంచి ఈయన దగ్గర నుండి 3.5 లక్షల డబ్బుని, ఇది గవర్నమెంట్ డబ్బుని తీసుకెళ్ళిపోయినట్టు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా అన్ని స్టేషన్స్ కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగి విచారణని DSP రాజంపేట ఆధ్వర్యంలో జరిపించడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకు తేలినది ఏంటంటే ఈ చిన్నబాబు అనే వ్యక్తి he had a friend by name కార్తిక్ మరియు కోనెట్టి శ్రీను, గాలి రమణయ్య, వీళ్ళ ద్వారా మన చిట్వల్ పైన అడవి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రెడ్ శాండర్స్ లాగ్ని కొట్టించడానికి వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ డబ్బుని వాడుకోవడం జరిగింది. ఈ రాబరీ అన్న ఒక ఘటనని ఫేక్గా సృష్టించడం జరిగింది. వీళ్ళు నలుగురు కూడా ఆ డబ్బుని రెడ్ శాండర్స్ ఎవరైతే కూలీలు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇచ్చి కొట్టించి ఆ సరకుని ఇంకా ఒక ముగ్గురు కావేరి వంశీ, శకకుమార్ చౌదరి, అనిల్ కుమార్ వీళ్ళకి ఇచ్చి అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినది ఇన్వెస్టిగేషన్లో బయటపడింది.
వీళ్ళందరినీ కూడా రౌండప్ చేసి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి కూడా స్వాధీనాలు ఈ క్రైమ్కి ఏదైతే వాడుకోవడం జరిగిందో దాదాపు ఇన్నోవా కార్ ఒకటి, ఎటియాయిస్ కార్ ఒకటి, పల్సర్ మోటార్ సైకిల్, టీవీఎస్ మోటార్ సైకిల్, 28 లాగ్స్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి స్వాధీనం చేసి దాదాపు 19 మెంబర్స్ని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ కేసులో ఇంకా కొందరు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం వీళ్ళని ఈరోజు అరెస్ట్ చూపించి వీళ్ళని జైలుకి పంపించడం జరుగుతున్నాయి. దీంట్లో ఒక్క వ్యక్తి మీద ఆల్రెడీ ఒక కేసు, కోనెట్టి శ్రీను, ఇతని మీద ఆల్రెడీ ఒక కేసు ఉండడం వల్ల ఇతని మీద ఎక్స్టర్మినేషన్ యాక్ట్ని కూడా ఇప్పుడు అప్లై చేయబోతున్నాము. ఒకవేళ 5 కేసులు పైన అయి ఉంటే 6 monthsలో పీడీ యాక్ట్తో కూడా ఖచ్చితంగా పెట్టడం జరుగుతుంది. కానీ రెండవ కేసు కాబట్టి ఎక్స్టర్మినేషన్ చేస్తున్నాము. రెడ్ శాండర్స్ విషయంలో కడప పోలీసులు చాలా కఠినంగా ఉంటాము. దాదాపు ఈ 21 month లోపల 4 కేసులు రాజంపేటలో కట్టడం జరిగింది. ముద్దాయిల్ని కూడా ఇమీడియట్గా రిమాండ్కి పంపించి వాళ్ళ మీద కూడా పీడీ యాక్ట్కి ఏవేవి ఆ విధులు మేరకు ఉన్నాయో అవి కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రజలు కూడా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో ఎవరైనా ఫాలో ఉంటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని కూడా కోరడం జరుగుతున్నాయి. ఈ పర్టికులర్ టాస్క్లో చాలా చక్కటిగా ఈ 10 రోజులు కూడా ఇది రాబరీయా ఆర్ దీనికి వెనకాల వేరేదైనా ఉందా అన్న విషయం మీద చాలా క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేసిన డిఎస్పీ రాజంపేట్, సిఐ ఒంటిమిట్ట సిఐ, అదేవిధంగా ఆయన స్టాఫ్ అందరూ కూడా రివార్డ్ చేయడం జరుగుతున్నాయి. They have done a very good job and they have brought a very good laurels to the Kadapa police. I appreciate them. Thank you so much. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें. बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ. अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. शब खैर. तुम खासुल खास हो आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो